Good morning, class second. Class, this is your English literature book, and today we'll start chapter 14th, The Hen and the Apple Tree. Class, it's a story written by Anna Lobel. In this story, you will learn that how we save ourselves by using our mind, intelligence in any critical situation, in any problem. We can save ourselves. Okay. This is a short description of the story. Have you ever tricked someone who tried to harm you? In this story, a hen fools a cunning wolf by using its intelligence. Read on to find out how. Here, the writer is asking you that have you ever tricked? Have you make fool or have you cheat someone? Just to वन हु ट्राई टू हार्म यू, कभी क्या आपने किसी को फूल किया है, बुद्धू बनाया है, ठीक, या कभी किसी को धोखा दिया है? क्यों? क्योंकि वो पर्सन या जो भी था वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? एंड इन दिस स्टोरी अ hen fools a cunning wolf. This story is about a hen who fools a cunning wolf. ओके, इस स्टोरी में एक hen है जो एक चालाक और धोखेबाज वुल्फ मीन्स भेड़िया, वुल्फ को क्या करती है? बेवकूफ़ बनाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक, और कैसे बनाती है? बाय यूजिंग इट्स इंटेलिजेंस, बाय यूजिंग हर माइंड, अपने माइंड का, अपने दिमाग का यूज़ करके वो उसको बेवकूफ़ बनाती है और अपने आप को बचाती भी है। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ. Okay, you have to read the story that how this clever hen saved herself by this cunning fox. Okay, so class, from here the story started. One October day, a hen looked out of her window. Okay, this story is about a hen. One October day, a hen looked out of her window. She saw an apple tree growing in her backyard. Backyard means एरिया बिहाइंड अ बिल्डिंग, जो पीछे का एरिया होता है ना, सो वो एरिया. सो व्हाट वन डे व्हाट हैपन, दिस hen looked that there was an apple tree, okay, which was growing in her backyard. okay, यहाँ पे क्या होता है, जो hen है वो क्या देखती कि उसके बैक यार्ड में, पीछे के एरिया में क्या है, जो उसके घर के पीछे का ग्राउंड होगा, एरिया होगा, वहाँ क्या देखती, वहाँ पे एक एप्पल ट्री देखती है. ठीक, अपने विंडो से बाहर देख लो ना इस पिक्चर में कि विंडो से बाहर देखती है कि एक बड़ा सा एप्पल ट्री है. नाउ दैट इज ऑड. ऑड मीन्स डिफिकल्ट, डिफरेंट. ओके, विच इज नॉट इजी टू एक्सेप्ट. अनयूजुअल, जो हमेशा अलग होना थोड़ा, कि मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं था, अचानक से कैसे हो गया. सो नाउ दैट इज ऑड, सेड द hen. आई एम सर्टेन. Certain means confirm. I am certain that there was no tree standing in that spot. Spot means area, okay, or location, when I closed my window yesterday night. So here the hen is saying to herself that there was no any apple tree or not any tree till yesterday night. When I closed my window in the yesterday night, there was no any tree standing here. Okay, यहाँ पे जो है ना, वो क्या कह रही है अपने आप से कि मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि कल रात तक जब मैंने सोने जा रही थी या विंडो क्लोज कर रही थी, तब तक यहाँ पे कोई भी पेड़ यहाँ पे नहीं था, इतना तो मुझे कंफर्म है. द ट्री कॉल्ड आउट, हेलो देयर hen, इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग, isn't it? Why don't you come out and have a cup of tea under my leafy branches? So now here it's a very unusual thing that a tree can talk. In this story, this tree can talk. How? Listen this. Here the tree is saying that, hello hen, come here. Okay, it's a very pleasant morning. It's a very good morning, enjoyable morning. Come here and sit under my leafy branches and also have a cup of tea. Enjoy it. यहाँ पे जो ट्री है ना, वो बोल सकता है, और बोलते हुए क्या कहता है hen से कि बाहर आओ, कितनी अच्छी सुबह है, बाहर आओ और मेरे पेड़ के नीचे बैठो, मतलब मेरे जो
पत्ते हैं, डालियाँ हैं, के नीचे बैठो और आके चाय एंजॉय करो। ओके। आई डिड नॉट नो दैट ट्रीज कैन अपीयर आउट ऑफ nowhere. Trees take many years to grow, the hen said. So here in reply, the hen said that it is not possible that a tree comes in a day or in a night. It is not possible. Trees take many years to grow. Okay, यहाँ पे जो है ना क्या कहती है कि मैं तो नहीं जानती आज से पहले, मुझे नहीं मतलब ऐसा कुछ पता सुना है मैंने कि कोई भी ट्री रातों रात मतलब इतना बड़ा उग जाए और मतलब आ जाए, सामने आ जाए। ठीक, पेड़ों को तो बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं इतना बड़े होने में, और आज से पहले तो ऐसा तो कुछ था नहीं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? देयर आर सम ऑफ अस दैट ग्रो फास्ट, द ट्री एक्सप्लेन्ड। सो नाउ द ट्री सेड दैट देयर आर सम स्पेशल ऑफ अस दैट ग्रो फास्ट। ओके, देयर आर सम स्पेशल काइंड ऑफ दैट ट्री दैट ग्रो फास्ट। ओके, यहाँ पे जो पेड़ है वो क्या कहता है कि हम लोग के कुछ अलग मतलब वैरायटी होती है, कुछ स्पेशल होते हैं जो इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ स्पेशल हैं। द hen looked at the bottom of the tree. Bottom is down area, this. Okay, so then the hen looked at the bottom of the tree. जो hen है वो पेड़ के जो नीचे के रहता है, नीचे का पोर्शन, उसके तरफ देखती है। I have never seen a tree, she said, that has 10 furry toes. Furry means hairy and toes means legs finger, जो पैरों की उंगलियां होती है ना उसको। So here this hen said that I have never seen a tree like you that which has 10 furry or hairy toes. Okay, for 10 hairy fingers, leg fingers. Okay, यहाँ पे जो है ना वो क्या कहती है कि मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई पेड़ हो जिसकी 10 बड़ी बड़ी, देख रहे हो ना यहाँ पे, बड़ी बड़ी फरी टोज हों, उसके पैरों की उंगलियाँ। तो क्या कभी देखे हो तुम लोग किसी पेड़ का जिसके पैर की उंगलियाँ भी होती हैं? पैर भी होते हैं, उंगली दूर की बात है, पैर भी होते हैं, देखे हो कभी? नहीं ना। सो ऑल्सो दिस hen said this. Next, there are some of us that do, said the tree. Hen, come outside and enjoy the cool shade of my leafy branches. So now again this tree said in a very confident mode that there are some special of us that can have, okay, and that do. Okay, यहाँ पे जो पेड़ क्या कहता है, कुछ हम लोग में होते हैं कुछ वैरायटी के जिसके पैरों की उंगलियां भी होती हैं। ठीक, and also he said to the hen that come outside and enjoy the cool shade of my leafy branches. Okay, यहाँ पे पेड़ क्या है, फिर से कहता है इससे hen से कि हम लोग के कुछ स्पेशल वैरायटी के होते हैं हम लोग जिसके पैरों की उंगलियां भी होती हैं। ठीक, और आओ बाहर और मेरे पेड़ों की छाँव में बैठो और एंजॉय करो इसकी ठंडी ठंडी हवा को, छाँ को। The hen looked at the top of the tree. After this, the hen looked at the top of the tree. Top means ऊपर की तरफ और bottom means नीचे की तरफ। ठीक, I have never seen a tree, she said, that has 2 long pointed ears. Then again the hen said that she has never seen like any tree which has 2 long pointed ears. You can see in this picture. यहाँ पे जो रहती है क्या कहती है कि मैंने आज से कभी ऐसा कोई पेड़ नहीं देखा है जिसके क्या है, 2 बड़े बड़े दम नुकीले चुकीले क्या हो, ईयर्स भी हो, 2 बड़े बड़े कान भी हो। आफ्टर दिस नाउ अगेन द tree said, there are some of us that have, said the tree. Hen, come outside and eat one of my delicious apples. Now again the tree said that there are some of us, special of us, okay, a special variety that have long pointed ears. Okay, now again he said to the hen that come outside and eat one of my delicious or tasty apples. ओके, यहाँ पे जो पेड़ है वो फिर से कहता है इनसे कि हम लोग कुछ स्पेशल वैरायटी के होते हैं, हम लोग के स्पेसिस के जिसके बड़े बड़े 2 कान भी होते हैं। ओके, चलो बाहर आओ और मेरे पेड़ के टेस्टी टेस्टी एप्पल्स खाओ।
Come to think of it, said the hen, I have never heard a tree speak from a mouth that is full of sharp teeth. So again, the hen said that I have never listened or heard about this, that a tree who had a mouth and also full of sharp teeth, okay, and who can also talk or speak. ओके यहाँ पे हन फिर बोलती है कि मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना है कि कोई पेड़ जो है बात करता हो, ओके, बोल सकता हो, उसका मुंह भी हो, ठीक, और उसके खूब बड़े बड़े क्या हो, शार्प टीथ, चुकीले दांत भी हो, ओके. There are some of us that can, said the tree. Hen, come outside and rest your back against the bark of my trunk. So here again the tree said to the hen that there are some special of us that can speak or talk and also have sharp teeth. Okay, hen, come outside and rest under my branches. Okay, against the bark of my trunk. Bark means जो पेड़ की छाल होती है ना, आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, जो पेड़ की छाल होती है ना, बाहरी एरिया, ओके, और ट्रंक मीन्स डालियाँ, ठीक. तो आओ मेरे पेड़ की छाँ के नीचे बैठो, ओके, आराम करो ठंडी ठंडी हवा में. द hen thought for a moment. I have heard, she said, that some of your trees lost all of your leaves at this time of the year. So here the hen used her mind, her intelligence, and said that the hen said here that I have heard that some of your trees lost all your leaves at this time of the year. यहाँ पे hen थोड़ा सा सोचती है और फिर अपने दिमाग का यूज़ करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोग की तरह के कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो इस टाइम, साल के इस टाइम क्या होते हैं, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं. ओके, लॉस मीन्स झड़ जाना या गायब हो जाना, ठीक. तो उस साल के इस टाइम क्या होता है, तुम लोग के ऐसे पेड़ होते हैं कुछ, मैंने सुना है कि सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं. Oh yes, said the tree, there are some of us that will. The tree began to quiver and shake. All of its leaves quickly dropped off. So now what happened here? The tree came in a very confident mode and said, yes, there are some of us that lost all leaves in this time. After this, he started to quiver and shake, okay, shake its body, and then after some time all leaves of that tree dropped, okay, dropped off. यहाँ पे क्या होता है, जो पेड़ रहता है एकदम कॉन्फिडेंस में कहता है कि हाँ हाँ कुछ ऐसे होते हैं, हम लोग में होता है ऐसा कि इस टाइम सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक. उसके बाद क्या करता है, खूब चीज़ अपने आप को शेक करता है, मूव करता है, और उसके बाद सारे पत्ते उसके नीचे आ जाते हैं, सारे पत्ते पेड़ से नीचे आ जाते हैं. आफ्टर देन now there was a large wolf in the place where an apple tree had been standing just a moment before. Now what happened here? The reality comes out. At the place of that tree, a big and very furious large wolf stay there. Okay? यहाँ पे क्या होता है, जब वो अपना शेक करता है तो सारी पत्ती झड़ जाती हैं, और पत्ती झड़ने के बाद जो रियलिटी है ना कि वो पेड़ नहीं रहता है कोई, बल्कि क्या रहता है, खूब बड़ा सा वोल्फ रहता है, भेड़िया रहता है. जहाँ पे कुछ टाइम पहले एक अच्छा सुंदर सा पेड़ रहता है, वो पेड़ रियलिटी क्या रहती है, वो पेड़ नहीं बल्कि एक बड़ा सा वोल्फ रहता है. I knew you were not a tree, she exclaimed. She locked her shutters and slammed her window closed. So now here the hen said, I know it, that you were not a tree. ओके, यहाँ पे जो hen रहती है क्या कहती है, मुझे पता था तुम कोई पेड़ वेड़ नहीं हो, ठीक ना. आफ्टर देन शी क्लोज हर विंडो एंड गो इनसाइड हर हाउस. ओके, यहाँ पे क्या करती है, अपना विंडो, अपना शटर सब चीज़ क्लोज करती है फटाक से और अपने घर के अंदर चली जाती है. जो विंडो का डोर रहता है उसको क्लोज कर देती है, जिससे ये अंदर ना आ पाए या उसको नुकसान ना पहुँचा पाए. द वोल्फ रियलाइज्ड दैट द hen had got the better of him. He was furious. Okay, by doing this situation of hen, he was in very anger mode. जब ऐसा hen करती है ना तो क्या बहुत गुस्से में होता है, और उसको पता चल जाता है कि जो वो है hen है वो उससे ज़्यादा वो है
इंटेलिजेंट है, ओके, बुद्धिमान है। तो क्या बहुत गुस्से में हो जाए, उसने जब शटर क्लोज कर लेती है, अपना डोर क्लोज कर लेती है विंडो का, उसके बाद बहुत गुस्से में आ जाता है। He shook his fist at the hen's house. I will find a way to get you out of your house. Hen, he said loudly and stormed away in a hungry rage. After then, he was in a very anger mood. He shook his fist. Fist means जो मुट्ठी होती है ना, उसको फिस्ट कहते हैं। एट द हेंस हाउस, वो क्या करता है, गुस्से में अपनी मुट्ठी को, अपने पंजे को क्या करता है, उसके घर, हैन के घर पे पटकता है, ठीक ना। एंड आई विल फाइंड अ वे टू गेट यू आउट ऑफ योर हाउस, ओके। यहाँ पे क्या कहता है ये, कि मैं ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लूँगा जिससे तुम अपने घर के बाहर आओगे, ठीक है, तुमको पकड़ लूँगा, तुमको नुकसान पहुँचाऊँगा, खा लूँगा, ठीक। Hen, he said loudly and stormed away in a hungry rage. Okay, बहुत सारी बातों को गुस्से में न कहता है, सारी चीज़ों को। The hen heard him as she sat on her favorite armchair and sipped a cup of hot tea. And the hen avoided all these things and relaxed in a very happy moment in her house. Okay, also sat on her favorite armchair and enjoyed a cup of hot tea. यहाँ जो है ना, वो उसकी कितना भी गुस्सा है, चिल्लाए, भड़बड़ाए, उसकी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। घर के अंदर है अपनी जो उसकी फेवरेट चेयर है, उस पर आराम से बैठ के चाय इंजॉय कर रही है, ओके। It takes more than claws and sharp teeth to outwit a smart person, Wolf, she said to herself and smiled. Okay, here what the hen said, that sometimes it doesn't matter that you have claws and sharp teeth and a furious body, okay, it may also lose yourself. यहाँ पे क्या कह रही है जो है ना, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास बहुत बड़े पंजे हैं, बड़े बड़े दांत हैं और तुम्हारी बॉडी भी एकदम फ्यूरियस है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, कोई छोटा इंसान भी अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर साबित कर सकता है, ठीक ना, ज़्यादा स्मार्ट बता सकता है। She said to herself and smiled. ओके, और यहाँ पे वो बहुत इंजॉय कर रही है, खुश है और स्माइल करती है। So class, here the story is completed. Hope you all enjoyed, okay, and also learned a lesson that sometimes your intelligence save yourself, okay, by the critical situation. Okay, so class, here the story is completed. It's enough for the day. Thank you.